نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، مفتی فضل ہمدرد کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی صحابی واجب الاتباع نہیں، صرف اہل بیت کی جو ہے وہ اتباع واجب ہے۔ یعنی نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما آدم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطرتی آل بیت ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض۔ صرف ان کی اتباع واجب ہے اور کسی کی کوئی اتباع واجب نہیں۔ اہل بیت کی اتباع ہے، صحابی کی اتباع اگر کوئی ہے تو صحیح سند سے حدیث لکھا ہے۔ سب سے پہلے مفتی فضل ہمدرد کا یہ کلپ سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تبصرہ پیش کرتا ہوں کہ کیا یہ بولی رافضیوں کی بولی نہیں ہے، کیا یہ اہل سنت کی بولی ہے؟ کسی ایک سنی امام کا فتویٰ دکھائیں، سنی امام کا، اہل سنت کے کسی متقدم علماء یا مؤخر علماء میں سے، متقدمین میں سے یا مؤخرین میں سے، یا اب یہ اپنے استاد گرامی مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا فتویٰ دکھا دے کہ صحابی واجب الاتباع نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ و حضرت زبیر، حضرت سعد و سعید، مہاجرین و انصار۔ یہ پہلے کلپ سن لیں، میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ کی بات کرتے ہیں مثلا صحابیت، ان صحابیت کا عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص صحابی ہو تو وہ واجب الاتباع بھی ہے۔ مجھے ایک حدیث بتا دو، ایک حدیث مولوی جی کہتے ہیں ایک حدیث دکھا دے مولوی جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ صحابی واجب الاتباع۔ حضرت میں آپ کو حدیث سے قرآن دکھاتا ہوں، نکالیے قرآن مجید فرقان حمید سے ان آیات بینات کو۔ اتنا اندھے ہو چکے ہو کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح خاندان پاک ہمارے لیے واجب الاتباع، ہم ان سے دین لیں گے، ہم ان سے ایقان لیں گے، ایمان لیں گے، ان سے فیض لیں گے، اسی طرح صحابہ جن کو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ صحبت میں تطہرہم وتزکیہم، انہیں پاک کیا، انہیں طہارت دی، کہ جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ ایسا رسول بھیج ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب تعلیم کرے، علم یعلم تعلیما باب تفعیل سے ہے، انہیں سکھائے قرآن کے معنی اور مفاہیم۔ تو وہ کس لیے سکھائے گا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ صحابی امت کو بتائے یا بالکل چھپا دے؟ بھائی سرکار صحابہ کو سکھا رہے ہیں، کس لیے سکھا رہے ہیں؟ کہ تم نے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ کے آنا ہے، امت کو کوئی نہیں سکھانا؟ تو جب وہ امت کو سکھائیں گے تو جو وہ سکھائیں گے کیا امت پہ اتباع ان کی واجب نہیں ہوگی؟ تو امت ٹھکرا دے گی نہیں جی ہم کوئی ایک حدیث دکھائیں ہم نے تو تمہاری بات ہی نہیں ماننی۔ بتائیے بھائی، خزانہ ہے حدیث پر پورے خزانہ ہے حدیث اہل سنت پہ اس نے حملہ کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ جب واجب الاتباع نہ رہا تو ان سے روایت لینی درست نہ رہی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جو روایت بیان کر رہی ہے اپنی طرف سے کرتے ہوں گے۔ جب وہ واجب الاتباع نہ رہے، جب ان کی بات پہ عمل کرنا واجب نہ رہا، اعتماد اٹھ گیا۔ کیا یہ فلسفہ قرآنی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید، حدیث پاک، حدیث کا درجہ بھی اپنی جگہ، میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب لوگوں سے، منافقوں سے کہا جاتا ہے، لبرل لوگوں سے، ڈگمگانے والوں سے، مترددین سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، ہاں جی، تو ان کے ایمان کی طرح ایمان لانا یہ واجب ہے۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 13 سورۃ البقرہ کی۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو بے وقوف لوگ، منافق لوگ کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا اور واجب الاتباع نہ سمجھا، جس طرح تم کہتے ہو کہ نہیں صحابی، ایک حدیث دکھاؤ کہ صحابی واجب الاتباع ہے۔ تو یہ بولی منافقوں کی بولی ہے جو رب نے قرآن میں بیان کی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ واجب الاتباع نہیں، یہ بے وقوف ہیں، کیونکہ بے وقوف واجب الاتباع نہیں ہوتا، عقل مند جو ہوتا ہے اسی کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگے اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک وہی لوگ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اور کہہ کے اتباع، ان کی اتباع سے نکلے، اتباع بالایمان سے نکلے، فرمایا وہ خود بے وقوف ہیں، انہیں علم بھی نہیں ہے اپنی بے وقوفی کا، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 137، یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے، تم ایمان لائے، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ بن الجراح، مہاجرین و انصار، تم جس طرح ایمان لائے ہو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے، یہود و نصارہ بھی،
फकद इहतदौ, तो वो भी हदायत पा जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदायत का मियार ही सहाबा को बनाया है कि वो भी उसी तरह हदायत पाएंगे जिस तरह तुम हदायत पा गए हो। बशर्त क्या है कि तुम्हारी वो इत्तिबा कर लें। और तुम सभी तो साहबी वाजिब इत्तिबा ही नहीं होता, उसकी इत्तिबा एक हदीस, ये 2 कुरान की आयतें हो गई हैं, एक हदीस नहीं 2। इंशाल्लाह मैं अहदीस भी दिखाऊंगा, तुमने तो मुतालिया करना ही नहीं है। तुम्हें तो जो लिख लिखा के तकरीर मिल जाती है, आगे जाके वीडियो बना देते हो। दोबारा जाके सर्वो नाम से शुरू करके दौरा पड़िएगा, जब मैं आपको मशवरा देता हूं, या अपने अंदर झांकिएगा कि मैं किस मकाम पे खड़ा हूं और कितना दजल और फरेब कर रहा हूं। कहीं तुम दज्जालूना कज़्ज़ाबूना में तो दाखिल नहीं हो रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो भी हदायत पा जाएंगे। कौन? यहूद और नसारा। क्योंकि यहां बात यहूद और नसारा की चल रही थी कि यहूदी कहते थे कि हम जन्नती हैं, ईसाई कहते हैं कि हम जन्नती हैं, हमारी इत्तिबा करो, हमारे पीछे चलो तो जन्नत में पहुंचोगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये यहूद और नसारा उस तरह माने जिस तरह सहाबा तुमने माना है तो वो भी हदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, अगर वो फिर जाएं, मुंह फेर लें, पीछे नहीं जी हमने तो सहाबा को वाजिबुल इत्तिबा नहीं समझा, हमने नहीं इत्तिबा करनी, तो हुम फ़ी शिकाक। तो अल्लाह फरमाता है वो मुखालिफत में है, वो तुम्हारे मुखालिफ हैं। तो ये डिग्री तुझ पे लग रही है मुफ्ती फजल हमदर्द कि तुम सहाबा के करीम के मुखालिफ हो, सहाबा इकराम के। तो ये 2 आयतें हुई। अब तीसरी आयत सूरत तौबा की आयत नंबर है 100। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। इत्तिबा का पूरा लफ्ज है वल्लज़ीना तबऊहुम इत्तबऊहुम बिइहसान, इत्तबऊहुम बिइहसान। इरशाद फरमाया वो पहले पहले सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन में से और अंसार में से, और वो लोग जिन्होंने एहसान में इनकी इत्तिबा की। तो सहाबा वाजिबुल इत्तिबा ना हुए? बताइए, सहाबा इत्तिबा के काबिल ना हुए? तो कहते एक रवायत, ये 3 आयाते कराम आयाते मुबारका हुई, तुमने 3 आयाते बैयिनात को पीछे हटा दिया, तो सहाबा वाजिबुल इत्तिबा नहीं है। जिस तरह अहले बैत वाजिबुल इत्तिबा है, इस तरह सहाबा भी वाजिबुल इत्तिबा है। ईमान में ये दोनों वखरे नहीं है। जो ईमान ताजदार हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा का है, वही ईमान सहाबा का है, वही ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, वही ईमान हजरत फारूक आजम का है, वही हजरत उस्मान गनी मुहाजिरीन और अंसार का है। ईमान में, ईकान में वो जुदा नहीं है। जो जुदा समझे उसका ज़हन खुद जो है मुनाफिकत में कुरान की मुखालफत कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने एहसान में, ईमान में, ईकान में दर्जा एहसान के साथ इनकी इत्तिबा की, पैरवी की, किन की? मुहाजिरीन और अंसार की। तो ये 6 हो गए ना कम अज कम, क्योंकि जमा का सीगा मुहाजिरीन और अंसार, मुहाजिर भी जमा है, अंसार भी जमा है। मुहाजिरीन कम अज कम 3 मुहाजिर, अंसार कम अज कम 3 अंसार, तो 6 हो गए। और तुम्हारी काली बरादरी के नजदीक तो सिर्फ 3 मोमिन हुए, तो 6 की गिनती पूरी करें ना। और फिर यहां अल्लाह पाक ने अल मुहाजिरीन का, अकेला मुहाजिरीन नहीं कहा। और जब जमा के ऊपर अलिफ लाम लग जाए तो जमा मुंतहल जमू बनते, यानी टोटल के टोटल मुहाजिरीन। और अंसार पर भी अलिफ लाम लगाया, और ये फायदा देता है कि कोई भी लफ्ज अल अंसार से कोई भी अंसारी खारिज नहीं, लफ्ज अल मुहाजिरीन से कोई भी मुहाजिर खारिज नहीं। ये पढ़ लेना था, ये नाम वगैरह की किताबें आपने देख लेनी थी, दोबारा खंगाल लेनी थी। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, टोटल मुहाजिरीन की और टोटल अंसार की जिन्होंने इत्तिबा की। अल्लाह तो क्या करेगा? फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये सारे खुदा से राजी हो गए जिन्होंने इत्तिबा की। किन की? मुहाजिरीन और अंसार की। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, जिन्होंने इत्तिबा की अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फीहा अबदा, वो उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। कौन? जिन्होंने सहाबा की इत्तिबा की। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मैंने 3, वरना कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शाने और अजमतें और मनाकिब सहाबा के बयान किए हैं वो तो अलग है, वो तो पूरा चैप्टर है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म और नाज़िक बेअसर। जी कोई साहबी दिखाएं कि साहबी वाजिबुल इत्तिबा हो, ये देख लें, क्योंकि आपका सुन्नियत का दावा है कि मैं सुन्नी हूं। तो ये लीजिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि इस तक वो जो आपकी काली बरादरी ने रवायत बनाई है वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सलासतु नफर में अब्दुल्लाह बिन मसऊद नहीं है कि कहीं ये ना कहना नहीं कि वो हैं, वो आपने रवायत खंगालनी है, बयान करनी है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद साहबी वाजिबुल इत्तिबा है या नहीं है? इमाम तिरमिज़ी ने इसको लिखा
मौला कायनात शेर यज़दा रवायत करते हैं हज़रत मौला अली शेर खुदा व अन अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कुन्तु मुअम्मिरन अहदन मिनहुम मिन गैर मशवरतिन लअमरतु बिन उम्म आबदिन, अगर मैं किसी शख्स को बगैर मशवरे के अमीर मुकर्रर करता तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को करता। और अमीर किस लिए होता है? इत्तिबा के लिए होता है या नहीं होता? तो बताइए, अमीर किसी को बादशाह बना दिया जाए, कौम इत्तिबा ही ना करे, उसकी बादशाह तो ये ठीक है या तमस्खुर है, ड्रामा है? अमीर बनाने का क्या मकसद होता है? आके करीम अलैहिस्सलाम ने अमीर की इत्तिबा के लिए अहकाम जारी फरमाए कि नहीं? आप काफी वगैरह खोल लीजिए, अमीर के अहकाम है या नहीं है? आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रदीतु लकुम रदी लकुम इब्नु उम्म आबदिन, इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक के अंदर लिखा और इमाम ज़ाहबी ने कहा कि ये बिल्कुल हदीस ठीक है। अफ़क़हु ज़ाहबी ने इसकी मुवाफ़क़त की है। अच्छा, बहरहाल आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा कराम से मैं तुम्हारे हक में हर उस बात से राजी हूं जिस बात से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद राजी है। जी, तो जिस बात पर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद राजी हो जाए, सरकार राजी है, अगर साहबी वाजिबुल इत्तिबा ही नहीं है, बात ही नहीं है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस तरह मिर्जा साहब कहते हैं बाबे से शाही कोई नहीं, तो तुम कहते हो साहबा तो कोई शाही नहीं, वाजिबुल इत्तिबा ही नहीं, मतलब है कोई शाही नहीं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद शाही कोई नहीं। और हुजूर फरमाते अब्दुल्लाह की बात मेरी बात है, तो वाजिबुल इत्तिबा हुए कि नहीं हुए? जिससे अब्दुल्लाह नाराज हो जाए सरकार नाराज हो जाते हैं, जिससे अब्दुल्लाह राजी हो जाए सरकार राजी हो जाते हैं। अब्दुल्लाह की राय को, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की राय को सरकारी जाना अपनी राय फरमा रहे हैं। तो बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है। फरमाया इस्तक़रिउल कुरान मिन अरबअतिन मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा व उबय इब्न काब व मुआज़ इब्न जबल। फरमाया कुरान पढ़ो, सीखो। किन से? 4 बंदों से। अब्दुल्लाह बिन मसऊद एक सहाबी का नाम लिया है। नंबर 2 हजरत सैयदना सालम मौला अबी हुज़ैफ़ा सहाबी का नाम लिया है। उबय बिन काब तीसरे साहबी का नाम लिया है। मुआज़ बिन जबल चौथे साहबी मुआज़ बिन जबल का नाम लिया है। इस हदीस में हज़रत मौला अली का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मौला अली भी वाजिबुल इत्तिबा हैं। वो तरक्तु फ़िकुम सकलैन में दाखिल हैं। इन्नी तरक्तु फ़िकुम सकलैन में, वो हदीस सकलैन में है, हदीस अमरैन में है, हदीस खलीफतैन में है। लेकिन ये 4 सहाबी अहले बैत के एक भी फर्ज नहीं है। इनको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे कुरान सीखो। अगर ये वाजिबुल इत्तिबा नहीं तो वो ये माना और मफहूम बयान करें। अगर ये वाजिबुल इत्तिबा नहीं तो सीखने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, 1000 बार इस्तिग़फ़ार कि एक बंदा वाजिबुल इत्तिबा ही नहीं है, उसकी बात सच्ची नहीं है, माननी ही नहीं है, और उसी से कहा जाए जाओ भी तुम सिखाओ। लेकिन आगे कौन से कहा नहीं इसकी बात नहीं माननी, तो ये ड्रामा नहीं हुआ? तो तुम दीन मुस्तफा को ड्रामा तौर पर पेश करना चाहते हो? ये 4 साहब हैं जिनका मैंने नाम लिया कि इनकी क्या करो, इनसे कुरान सीखो। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है इक्तदू बिहदी अम्मार की सीरत पे चलो। तो क्या हज़रत अम्मार वाजिबुल इत्तिबा ना रहे? कितनी हो गए? फिर आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर एक ही आयत हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 1.25 लाख सहाबी जहां जाके पहुंचाएगा कबीले में, जिस इलाके में, जिस कंट्री में, मुल्क में, और जिन इलाकों के अंदर वो हदीस रसूल को बयान करे और कुरान की शरह करे, तफसीर बयान करे, जो उसने ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा होगा, बयान करे, आगे उम्मत उसकी मानेगी कि नहीं? अगर नहीं मानेगी, क्योंकि उम्मत को तो तुमने कह दिया सहाबी की इत्तिबा वाजिब ही नहीं है, तो 1.25 लाख सहाबा को तो तुमने साइड पे कर दिया। चले मैं एक चैलेंज करता हूं, असूल काफी, रोजा काफी, फुरुए काफी, अल इस्तिब्सार, ताज़ीबुल अहकाम, मल्ला यदरुल फकीह, जो उसूल अरबा, आप अपनी काली बरादरी को साथ बैठा लें और सिर्फ हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा से, क्योंकि आप कहते हैं कि दीन सिर्फ उन्हीं से लेना और किसी से नहीं लेना, बाकी आइम्मा तो बाद में आए। चले इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये 3 आइम्मा जो मेरे सर के ताज है, मेरे मुर्शिद, मेरे हादी, मेरे रहनुमा, मेरे मुरब्बी, मेरा जानो माल तन सब कुछ उन पे कुर्बान, मेरी औलाद उन पे कुर्बान। मुझे ये बताए, बाकी आइम्मा बाद में आए हैं। हजरत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम, लेकिन बाद में आए, उन्होंने ज़ियारत कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं की। जब ज़ियारत नहीं की तो समा भी नहीं किया। हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर मेरे इमाम, ज़ियारत मुस्तफ़ा नहीं की, तो जब ज़ियारत नहीं की तो समा भी नहीं किया। हजरत इमाम जाफर अस-सादिक, उन्होंने भी ज़ियारत नहीं की, समा भी नहीं किया। किसी बाद में आने वाले आइम्मा में से किसी इमाम ने समा सरकार मदीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट नहीं किया। सिर्फ 3 इमाम, हजरत मौला कायनात शेर यज़दा, हजरत इमाम हसन अल मुज्तबा, हजरत सैयद शुहदा, हजरत इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन, वुज़ू से लेकर वरासत तक टोटली मुझे फिका जो है इन उसूल अरबा से आपने दिखानी है कि ये है। क्योंकि आप कहते हैं ना दीन सिर्फ इन्हीं से लेना है, बाकी सहाबा तो वाजिबुल इत्तिबा नहीं है, उनसे दीन लेने का कोई हुक्म नहीं है।
वजू, तयम्मुम, गुस्ल, नमाज, नमाज के वाजिबात, नमाज के अहकाम, रोजा, ज़कात, हज, वरासत, निकाह, तलाक, इकाला और तिजारत के मसाइल, कुर्बानी के मसाइल, ये सारी टोटल जो फिका है मुझे सिर्फ इन 3 हस्तियों से, 3 आइम्मा से, वजू से लेकर आखिर तक तमाम रवायात आप इन उसूल अरबा से दिखा दें। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, नहीं दिखा सकोगे। तो बल्लिगू अन्नी वलो आया का जो हुक्म हो रहा है और पूरी मिल्लत इस्लामिया तक जो दीन पहुंचा जा रहा है, मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम का, उनकी खलवत, उनकी जलवत, उनका खाना, उनका पीना, उनके फरामीन, उनकी नमाजें, उनकी जंगें, उनकी हिजरत। अब जो है हिजरत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हुई थी, तो मक्का से लेकर मदीना तक के उन हिजरत के जितने वाकयात हुए उनमें हज़रत मौला अली शामिल नहीं है। वो बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर शामिल है, वो बयान मौला अली करेंगे और किया है। और जो सफर हिजरत हुई है ये बयान कौन करेंगे? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। या जो मदीना से तबूक की तरफ काफिला निकला उनमें हजरत मौला अली शामिल नहीं। हमारा तरदान तकुन मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। वो मदीना में ठहरे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना वहां जानशीन बनाया था अपनी गैर हाज़िरी में। और वो 50 दिन के जो सफर हुए, जो मार्के हुए, जो सफर हुए, मोजज़ात हुए, तबलीग हुई, वो सारा कौन बयान करेंगे? वो सहाबा बयान करेंगे। इसी तरह हज़रत मौला कायनात शरीफ यज़दान जब यमन के अंदर काजी बनाकर भेजे गए तो उनके बाद जो कुछ मदीना में हुआ, जितने असफार हुए, जितने मोजज़ात हुए और जितने फरामीन बयान हुए, वो कौन बयान करेंगे? वो सहाबा करेंगे। अगर सहाबी वाजिबुल इत्तिबा ही नहीं है तो तुम सीरत मुस्तफा का बहुत सा हिस्सा खो बैठोगे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पे कामिल अमल नहीं हो सकेगा। तो मानना पड़ेगा कि अहले बैत भी वाजिबुल इत्तिबा है, सहाबा भी वाजिबुल इत्तिबा है, सहाबा से भी दीन लिया जाएगा, अहले बैत से भी दीन लिया जाएगा। और तुमने जो तफरका डालने की कोशिश की है, अल्लाह तुम्हारे इस तफरका से मेरी कौम को महफूज फरमाए।